गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 स्टूडेंट्स, जो हम चैप्टर कवर कर रहे हैं फ़िलहाल उसका नाम है मोशन एंड टाइम, एंड उसमें सिर्फ एक टॉपिक बची हुई है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि मैंने आपको अभी बताया नहीं था बिकॉज़ ये प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू बताना ज़्यादा बेटर था। ओके, so today we'll start with the distance time graph, and I'll draw, write everything, and then I'll show it to you how to draw a graph or a distance time graph and how many types of graphs are there. Okay, so first of all there are different types of graph. Okay, there are different types of graph. So first one is known as line graph. Second one is called as pie graph, and the third one, which you should know, is known as bar graph. Okay, so what is a line graph, what is a pie graph, and what is a bar graph? So I'll tell you one by one. A line graph is a graph between x and y axis which is mainly depicted in the form of a line. Okay, first you need to understand how a graph is drawn. So you have to make two axes. First is a vertical axis and the second one is a horizontal axis. Okay, so the horizontal axis is called x axis and the vertical axis is called y axis. This is the origin or 0 point axis. Okay, so a graph which represents x y axis like this and a in between line like this. Okay, in the form of, this is the first one, or like this, or anything with a line. Okay, anything with a line, then that is called a, these type of graphs which consist of a single line in between the x and the y axis, it is known as line graph. Okay, so a normal distance time graph is a line graph. Example for this is distance time graph, which I'll tell you in total description के साथ. The second one is the pie graph. So pie graph क्या होती है? Pie graph is with a pie chart. Pie chart मतलब एक ऐसे sphere बना होता है. Just consider it is a proper round sphere and इसमें हम proportions में बता रहे होते हैं चीज़ें. ठीक है, यहाँ पर कोई x y axis नहीं होती है. We just tell like this. This is something like this is A. The proportion of A is this much. Proportion of B is this much, and proportion of C, D and E will be this much. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको याद होगा, आपने क्लास 6 में पढ़ा था. क्लास 6 में आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर पढ़ा था, जिसमें हमें पाई चार्ट के थ्रू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस के बारे में एक पाई डायग्राम के थ्रू बताया गया था. ओके, आई जस्ट शो यू द पिक्चर. सो दिस इज अ पाई चार्ट इन विच देयर इज अ स्फीयर and with the proportions we are telling how much amount of the subject or the thing is available. Okay, so this much amount is nitrogen, this much amount is oxygen, and this much amount is the others. Okay, so this is a
pie chart or a pie diagram. The third one is the bar graph. Bar graph में again you have to make a x axis and a y axis. This is the x axis, this is the y axis and this is the 0 point of origin. ठीक है, और point axis, 0 point axis it is called. ठीक है, तो in case of bar graph, if there are some readings given, so we take those readings on the x and y axis respectively and we draw bars like this. So if anywhere you are seeing graph like this, ठीक है, जिसके बीच में x और y एक्सिस के बीच में ऐसे बार्स हैं, then this is a bar graph. Okay, so I have told you the three different types of graph. First is line graph, second is pie graph, थर्ड इज बार ग्राफ. लाइन ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ड्रॉ होता है, जो कि सिंपल लाइंस के फॉर्म में होते हैं, लाइंस. ओके, एंड द पाई चार्ट और द पाई ग्राफ इज लाइक अ पाई इन अ स्फीयर विद डिफरेंट प्रोपोर्शन. ओके, एंड द थर्ड वन इज द बार ग्राफ which is represented in the form of bars in between the x and the y axis. Now we'll start with the distance time graph, which is actually a form of line graph. Okay, it is the distance time graph is a type of line graph. Okay, so let's start with the motion of a car. So this is the value or the observations given regarding the motion of a car. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस आपको कहीं दिए गए हैं, अगर आपको प्रोवाइड किए गए हैं तो ये मोशन ऑफ द कार बता रहा है कि 0 टाइम पे कार ने 0 डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, 1 मिनट के टाइम में कार ने 1 किलोमीटर कवर कर लिया. 2 मिनट के टाइम पे कार ने 2 किलोमीटर कवर कर लिया. 3 मिनट के टाइम पे कार ने 3 किलोमीटर कवर कर लिया. 4 मिनट के टाइम पे कार ने 4 किलोमीटर कवर कर लिया. और 5 मिनट के टाइम पे कार ने 5 किलोमीटर कवर कर रखा है. ओके, सो हमें ये ऑब्जर्वेशंस और वैल्यूज़ दी गई हैं एक कार की. मान लो कार ए. ठीक है, कार ए जो है वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है एंड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, दिस इज द वैल्यूज गिवन. तो वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द कार ए. सो हाउ विल वी स्टार्ट? हाँ, हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स. ओके, हमने यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली. नाउ वी हैव टू डिसाइड विच वन विल बी द एक्स एक्सिस एंड विच वन विल बी द वाई एक्सिस. सो वी नो दिस इज गोइंग टू बी द एक्स एक्सिस. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी द वाई एक्सिस. This is the y axis and this is the x axis and this is the 0 point axis. ठीक है, ये 0 point axis है गई. सो नाउ वी हैव टू डिसाइड कि कौन सी क्वांटिटी को, मतलब कि या तो हमें टाइम को x के पास रखना है या हमें डिस्टेंस को x के पास रखना है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डिसाइड कि कौन से वैल्यू को हमें कहाँ पर दिखाना है. ठीक है, सो ईदर वी कैन डू एक्स एक्सिस पे टाइम और डिस्टेंस. तो मतलब एक्स एक्सिस पे हमने टाइम दिखाया है तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाएगा, और अगर वाई एक्सिस पे हमने टाइम दिखाया है तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आ जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट और चूज द स्केल. ठीक है, हमें स्केल मेजरमेंट डालना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट कि
वो हर एक यूनिट कितना टाइम या कितना डिस्टेंस कवर करने को दिखा रही है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड अ सिंगल यूनिट फॉर द टाइम एंड सिंगल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हमने एक एक यूनिट बनाया, जैसे 1 यूनिट इक्वल डिस्टेंस पे यू हैव टू मार्क, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। यहाँ पर हमें कितना कहाँ तक टाइम वैल्यूज़ दिखा रहे हैं, सी वैल्यूज़ क्या है 1 से लेके 5 मिनट तक। तो व्हाट विल डू, सारी वैल्यूज़ मिनट में है, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर यूनिट को क्या है मिनट में ही डाल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ यूनिट मिनट में होती और कुछ सेकेंड्स में होती तो इट विल बी बेटर टू टेक सेकेंड्स, यहाँ पर आपको सेकेंड्स डालना ज़्यादा बेटर होता, और उन सेकेंड्स को यू विल हैव टू काउंट एंड देन मेक इट आउट टू मिनट, ओके। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है दी हुई है 1 to 5 किलोमीटर, दिस विल नॉट बी मिनट, दिस विल बी किलोमीटर, ठीक है। तो वो यहाँ पर हम यूनिट क्या डालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस विल बी 1 किलोमीटर, दिस विल बी 2 किलोमीटर, दिस विल बी 3 किलोमीटर, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5। सेम यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। दिस विल बी 1 minute, this will be 2 minutes, this will be 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। now we have to draw a graph, distance time graph based on these values, ये जो दी हुई है यहाँ पे कार ए की, ठीक है। so first of all it is first value which is given is time 0 पे कार ए ने 0 डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि टाइम 0 कहाँ है, ये t0 है और यहाँ पर डिस्टेंस भी 0 है, ठीक है। दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट, सो इट मीन्स कि पहला कैलकुलेशन जो है वहाँ यहाँ पे हमें डालना है, दिस इज़ द टाइम 0 एंड d0, ओके। दूसरा क्या है 1 मिनट के टाइम पे डिस्टेंस कवर हुआ है 1 किलोमीटर, तो हम लेंगे यहाँ पे धीरे 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 ऐसे डॉट मारते हुए 1 किलोमीटर 1 मिनट, 1 मिनट के टाइम पे 1 किलोमीटर कवर किया गया है, मीन्स दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा। फिर 2 मिनट के टाइम पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, 2 मिनट के टाइम पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है, तो ऐसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। अगेन 3 मिनट के डिस्टेंस पे 3 किलोमीटर टाइम, सो वी हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, 3 मिनट के डिस्टेंस पे कहाँ तक जाना है 3 किलोमीटर तक, ओके। तो तीसरा यहाँ आएगा 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 4 मिनट में, ठीक है। तो 4 मिनट से स्टार्ट किया हमने, आप चाहो तो किलोमीटर से भी स्टार्ट कर सकते हो, टाइम पे आके रुक सकते हो। यहाँ पर चौथा पॉइंट आएगा, देन 5 मिनट में 5 किलोमीटर, ओके। देन विल स्टार्ट, यहाँ से करते हैं इस बार 5 किलोमीटर पे कहाँ जाना है, 5 मिनट तक जाना है, तो 5 मिनट, ठीक है। पॉइंट यहाँ आएगी, ठीक है। हमने दोनों पॉइंट को मिलाना है, 5 मिनट पे 5 किलोमीटर ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पर, 4 मिनट पे 4 किलोमीटर ये दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ पर, 3 मिनट पे 3 किलोमीटर, ओके। ऐसे ही हमने, और टाइम 0 पे डिस्टेंस भी 0 था, तो ये मतलब यहाँ पर t0 है और यहाँ पर d0 है, d इक्वल्स टू 0, ये ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। नाउ व्हाट विल डू, वी हैव टू कनेक्ट दीज, ठीक है। t0 d0 से t इक्वल्स टू 1, d इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 3, t equals to 4, d equals to 4, t equals to 5, d equals to 5. So this is a line graph based on these calculation for car A, ठीक है, and this is showing the motion of car A, ठीक है। Based on this graph you can tell that car A
at the time of t0 time 0 the distance covered was also 0. ठीक है, and the distance covered at time 1 minute was 1 kilometer. The distance covered at time 2 minute was 2 kilometer. The distance covered at time 3 minute was 3 kilometer. ठीक है, सो आपने ऐसे करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम शो करते हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का, किसी भी चीज़ के मोशन का. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल ग्राफ. इसको मैंने एक रूल्ड पेपर पे बनाया है. दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक दीज स्केल्स. ठीक है, अदरवाइज इफ़ यू ड्रॉ इट ऑन अ ग्राफ पेपर, उस पर ऑलरेडी स्केल्स बने होते, देन यू ओनली हैव टू डिसाइड कि वन स्केल विल बी इक्वल टू व्हाट यूनिट. मतलब अगर हमने एक स्क्वायर लिया ग्राफ का, देन वी कैन डिसाइड दिस विल बी इक्वल टू 1 मिनट और 1 second. Okay, so when I'll be having graph paper, I'll show you again how to draw a distance time graph. ठीक है, till then you just try to understand this much. ठीक है, कि यहाँ एक कार A है जिसकी मूवमेंट हमें टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दी गई थी वैल्यूज़, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया, एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सो दिस ऑल्सो शोज़ कि सी ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूसली ऐसे स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, कहीं बीच में मुड़ नहीं रहा. सो दिस ऑल्सो शोज़ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार. यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन इज़ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, विद अ कांस्टेंट स्पीड. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बार बार चेंज नहीं कर रहा होता है, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता, यहाँ पर अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख रहे होते, मान लो कि अगर एक कार B है, ठीक है, car B is there which is covering, okay, 1 minute में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, ओके, एंड 3 मिनट में 8 किलोमीटर. ठीक है, 4 मिनट में 15 किलोमीटर. सी द कार B जो भी है वो कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है, जिसके कारण वो सेम टाइम इंटरवल में, मतलब इन दोनों के बीच में कितने मिनट का फासला हुआ, कितने मिनट का डिफरेंस है, 1 मिनट का. इन दोनों के बीच में कितने मिनट का, 1 मिनट का. यहाँ पर कितना, 1 मिनट का. बट यहाँ पर देखिए, सी 1 और 4 किलोमीटर के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर का. ठीक है, 4 और 8 के 4 किलोमीटर का. 8 और 15 में फिर से 7 किलोमीटर का. ओके, बट यहाँ पर ये जो कार A थी वो पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल में, यहाँ पर 1 मिनट का डिफरेंस था, यहाँ पर फिर से 1 मिनट का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर से 1 मिनट, यहाँ पर 1 मिनट, और यहाँ पर कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का. ठीक है, 2 और 3 के बीच में फिर से 1 किलोमीटर का. मतलब कार A जो थी वो हर एक यूनिट ऑफ टाइम में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर कर रही थी. मतलब कि इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया नहीं है ना घटाया है, कांस्टेंट रखा है, जिसके कारण कि इसके डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ एग्जैक्टली सेम. ओके, कांस्टेंट है. हर एक मिनट में इसने 1 किलोमीटर कवर किया है, हर एक मिनट में इसने 1 किलोमीटर कवर किया है, जिससे कारण कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, लेकिन 2 मिनट्स में 2 किलोमीटर हो गया. बट वही अगर हम कार B का देखें तो कार B ने 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर किया, लेकिन 2 मिनट्स में इसने 4 किलोमीटर कर लिया. अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड पे होता तो ये 2 मिनट में 2 किलोमीटर कवर करता. ओके, सो इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन
In case of a non-uniform motion, what happens? The graph comes like this will be the x axis, this will be the y axis, okay, and this will be the 0 point of axis, ठीक है. सो इन केस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि यहाँ पर कार भी कर रही है, ठीक है, द ग्राफ डजेंट कम लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, द ग्राफ डजेंट कम लाइक अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की जैसी ग्राफ नहीं आएगी. ग्राफ विल ऑलवेज कम समथिंग लाइक द चेंजिंग डायरेक्शन, ठीक है, कुछ ऐसा, बट इट विल ऑलवेज बी अ कर्व्ड ग्राफ, ठीक है, कहीं से वो कर्व होता रहेगा. इट विल नेवर कम लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन एंड अ ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म motion. Okay, come to this graph. Okay, so this is the y-axis, this is the x-axis, ठीक है. यहाँ पर जो हमने ये लाइन बनाया, इट मीन्स इस पॉइंट पे, इस मोमेंट, इतनी दूर तक द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रही थी, वो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे थी, ठीक है. इसके आगे जाकर यहाँ से यहाँ तक फिर से स्ट्रेट लाइन है. इट मीन्स कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टाइम तो चेंज हो रहा था ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मान लो इस पॉइंट पे टाइम था 2 मिनट्स और इस पॉइंट पे टाइम बढ़ के हो जाएगा 4 मिनट्स, बट जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का, दैट विल बी द सेम ऑन द ग्राफ, ठीक है. इट मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी. दिस विल ऑल्सो बी अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये भी एक ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है एट अ स्पीड, एट अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, टू अ सर्टेन डिस्टेंस एंड देन इट केम टू रेस्ट. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ. एक आपको याद रखना, एक ग्राफ ये बताई जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन निकली थी, जो कि यूनिफॉर्म मोशन की है. अगेन दिस इज अ ग्राफ in which the object consists of this one where it is moving with a uniform motion and then it came to rest. Okay, so this is also a graph for uniform motion, but the graph for non-uniform motion will never be a straight line. Okay, so if an object is moving with a constant speed, the graph, the distance time graph, the distance time graph will always come as a straight line. Okay, in this case also the object was moving with the constant speed, so it was a straight line, and then it came to rest, so the distance time graph is also a straight line. Okay, this is also a straight line, this is also a straight line, so this comes under uniform motion. But look here, under non-uniform motion, what happens? The graph can be of any shape. Okay, so if you see a graph, if you see 2 graphs and one graph is consisting of that straight line, it means the object was moving at a uniform speed. And if the other xy distance time graph consists of different shape, okay, different types of shape, it can be anything. It can be anything means it can be like this, any of this, or it can be like this, ऐसा मतलब कुछ भी शेप हो सकता है if the object is in uniform motion. So this much about the distance time graph you have to remember. Okay, I'll give you the proper notes of the distance time graph which you will have to write in your notebook. Okay, so for today this much is enough. Thank you so much.